Hello, guys, and welcome back to Above the Average. I hope you're doing well, and I'm your host Chaitanya Nawate. जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा, मेरे पास शर्ट्स खत्म हो रहे हैं. गोवा के कपड़े पहन के घर पे बैठा हूँ. I really need to go shopping, but going away from the fact कि I look like I'm on the beach. And coming to the topic of today's podcast. On the podcast today with me, I have Akshat Marathe. Akshat is currently doing a job in his dream company and in the career field which is so close to me. And हमने इसके पहले भी बात की है, which is obviously engineering. बट इंजीनियरिंग के बारे में इस बार जो बात हुई है वो एक स्टेप आगे की हुई है. अब तक हमने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स के रिलेटेड बातें की थी इंजीनियरिंग के फील्ड में. अब हम एक स्टेप आगे ले रहे हैं फ्रॉम अ स्टूडेंट गोइंग एंड गेटिंग अ जॉब एंड दैट टू इन अ ड्रीम कंपनी, NVIDIA. That's right. Akshat Marathe has secured a job in his dream company which is NVIDIA. अगर आप कंप्यूटर, IT या इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड से हो, इंजीनियरिंग वो फील्ड में कर रहे हो तो आपको NVIDIA ये पक्का पता होगा. एंड अगर आप एक गेमर हो तो 100% पता होगा भाई, नो डाउट. Find out in this episode how Akshat managed to get a job in NVIDIA, and on this episode he shares a lot of advices and tips for all us freshers, all us engineering students. हमने बहुत डिटेल में जाके बात की है. YouTube पे हो अगर आप हो तो हाय, थैंक यू सो मच. एंड इफ यू आर ऑन IGTV राइट नाउ, go to YouTube and watch the full episode there. That's the intro. I'll see you in the episode with Akshat Marathe. Welcome Akshat on Above the Average podcast. How are you doing? I'm doing fine. How are you? I'm fine as well. How is the lockdown going? Yeah, I mean, podcast is the only thing I'm doing. I'm wasting a lot of time other than that. Yeah, but it's a great work that Yeah. you are doing. Okay, thank you. So going forward, and let's get into today's topic. On this episode, what you are doing, you are a computer engineer right now, and we will be talking about engineering. Before this on the podcast, I have talked about engineering. मतलब इंजीनियरिंग करने वाले 2 गेस्ट आ चुके हैं इस पॉडकास्ट पे. दोनों मेरे फ्रेंड्स थे. एक ने इंजीनियरिंग छोड़ दिया था और एक ने इंजीनियरिंग करने के बाद गेम डिज़ाइन में जाना है उसे, वो भी उसके लिए पढ़ रहा है. Nice. और मैं ऑन द थर्ड साइड इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करने जा रहा हूँ. तो काफ़ी सारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल आ चुके हैं, बट अभी तक स्टूडेंट्स आए हैं. एंड यू आर समवन हु हैज़ स्टार्टेड हिज करियर ऑलरेडी इन द इंजीनियरिंग फील्ड, and that is what I'm going to talk about on today's episode. So why don't you, for the audience, introduce first of all yourself, a basic introduction, and then what you're doing, or rather tell me what you did after what I am doing, engineering. So, hi guys, my name is Akshat Marathe. So I have graduated from YCC Nagpur. So it's Yashwantrao Chauhan College of Engineering, a pretty long name. So I would prefer introducing my college as a short form. So I am graduated from electronics department. So in 2017, and luckily I got placed from a campus placement in 2 companies. One was Capgemini and other one was L&T Technology Services. And I decided to move to L&T Technology Services because वो engineering में हमें फीड किया जाता है कि कोर जो इंडस्ट्री रहती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है. सो आई थॉट कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड काम होगा, उसमें करने को मिलेगा कुछ काम. दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड टू जॉइन L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज. सो आई वर्कड देयर फॉर अबाउट 3 years, and now recently I have joined NVIDIA Graphics Private Limited in Pune. But due to lockdown I am working at Delhi. Okay. So things are going fine for me. There were some challenges which I guess everyone has to face while working because it is campus to corporate transition. Yeah. But yeah, we all get settled up eventually. So as you said, there is a transition from campus to what did you say? Campus to
campus to corporate. Corporate. It is so new to me. I don't even I don't even have that word in my dialect. So first of all, you went to L&T. What was that mentality shift? मतलब अभी मेरा भी इंजीनियर ख़त्म हुआ, मेरे साथ मेरे जो बैचमेट्स हैं उन्होंने भी उनका प्लेसमेंट कर लिया होगा और स्टार्ट कर लिया होगा, एक जिन्होंने भी जॉब ले लिया होगा. व्हाट वाज द मेंटालिटी शिफ्ट कॉलेज करने के बाद? जब जॉब शुरू हुआ तो पहले दिन कैसा लगा था? जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा फीड किया गया था कॉलेज के वक्त कि कोर जो इंडस्ट्रीज रहती है वो अच्छी रहती है, एंड मी बीइंग ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू आईटी, सो आई थॉट कि अगर मैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में जाके जॉब करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या मेरे फील्ड से रिलेटेड काम करने मिलेगा, एंड दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर दैट कंपनी, एंड मुझे मिला भी. Like I was working on aircraft's software code which was made for their what you can say actuation systems. तो उनके जो actuation systems लगे थे वो wings में लगे थे. So that so it is used to when a flight takeoffs or when the flight lands, so उसके wing के structure को change करने के लिए there are some actuators which work. So उसके लिए जो software control system उन्होंने बनाया था उसके testing के लिए मुझे hire किया था L&T ने at start. So it was very critical project at that moment. So we had to like straightforward jump into that project. Like वैसे तो नॉर्मली L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में जब फ्रेशर्स हायर होते हैं तो उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, बट हमारे बैच के लिए इट वाज लाइक ए 1 month ट्रेनिंग एंड देन वी हैड टू डायरेक्टली वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट बिकॉज इट वाज वेरी क्रिटिकल वन. सो उस पर काफ़ी कुछ सीखने मिला. लाइक वी हैड to go and study the code which like the code basically was made by HCL developers. So we had to study that code and then we had to contact with the developer team and the company which was handling this whole project to see how to test this and what is the reason behind writing this code in such a way. So there were a lot of insights which we gathered in the starting months, or you can say starting 1 year where I worked on it. तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था, काफ़ी कुछ चीज़ें नई करने को भी मिली. फॉर एग्जांपल लाइक आई वाज नॉट नोइंग पाइथन like when I was in my engineering and I never did the hands on. So it was only like हमारा final year project था Python based, तो मैंने थोड़ा बहुत Python coding किया था. अच्छा. But going forward when I joined this company I had and I was in love with C++, which आई गेस इतने लोग नहीं मिलते क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भागते हैं, बट फॉर्चुनेटली मेरे में वो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कुछ खासा लगाव है मेरा. तो पाइथन में मुझे लगा आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन पाइथन. सो I saw that there were many tasks which were done manually in L&T. So I proposed that we could do this task by automating it using Python. So start में तो किसी भी फ्रेशर पे कोई इतना उनके वर्ड्स पे जाता नहीं है. So they started me giving me small task. तो छोटे मोटे टास्क दिए कि जैसे अभी इतने सारे फाइल्स थी, अब टेस्टिंग करना है इतना क्रिटिकल कोड. So test related जो भी artifacts थे, that database was pretty huge. So they first told me to copy some set of files from point A to point B, which I did it. So slowly they also started getting confident about my coding skills and they started giving me more and more tasks. And some of the tasks which I only went and proposed, like, okay, we can do this task in this way. And in that moment, like since it was very critical project, so even company was wanting the same thing. It was basically from everyone, because they didn't want us to waste time on doing manual task if that could be automated.
तो वो चीज़ थी, काफ़ी हेल्प की मुझे पर्सनल लेवल पे भी, काफ़ी उस चीज़ ने हेल्प किया, एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी जो टास्क उनको अचीव करने थे वो उन्होंने जल्दी अचीव कर लिए. सो दैट वाज अ गुड थिंग टू डू. Okay. फिर 1 साल काम करने के बाद आई वॉज इन टू मुंबई. फिर मुंबई में आई वॉज वर्किंग ऑन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एंड मीनवाइल वर्किंग ऑन दिस ATM domain. I was having this curiosity to go and do research and do masters. So I started studying for GRE TOEFL. तो अच्छा स्कोर आया था, एडमिशन भी मिला था, बट देन कोविड केम unfortunately, and it changed my life pretty much. Then I kept on working in L&T, and finally I decided to move out, and at that moment I had 2 options: either to go for masters because I had an admit, or join a company. So I got into Nvidia, and here I am. Amazing. Before we go ahead and talk more about your work at Nvidia, let's come back and talk about the fact that after doing engineering in electronics, you went and got a job in L&T, which was in aerospace, in a way, Yes. right? Aeronautics, actually. Aerospace, you can say. Okay, aerospace. Yeah. Yeah, so that is like still a pretty new thing to me even for engineers, because हम जब इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद हाँ हमारे एक ड्रीम होती है कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए, नहीं तो इतना लेवल का सैलरी चाहिए, वो भी एक ड्रीम होती है. बट मोर देन दैट, अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ये कंपनी में, ये फील्ड में, ये टॉपिक के अंडर ऐसे सब चीज़ें जो ड्रीम होती है. सो हाउ डिड यू फील जब पहला ही जॉब था वो एरोस्पेस में था, एरोस्पेस के डोमेन में था? सो मेरे लिए था, ये नई चीज़ थी, बट ये मैंने इंजीनियरिंग में ही सोच लिया था कि मुझे एनवीडिया जैसे कंपनी या रोबोटिक्स के डोमेन पे में काम करना है. सो व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड टू लिंक माय इंटरेस्ट विद what I was doing at that moment and what I wanted to do. So I always wanted to do something in electronics, do something like do a software development, you can say. अब मैं तो टेस्टर था, like and as a fresher and being an electronics engineer, it is really hard to get a software development का job. So I linked myself in such a way that it would be helpful for me to get into the domain where I wanted to work. Okay. So like robotics था या deep learning था, machine learning था, so मैंने उस related courses किए. थोड़े छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, अब नहीं मिलता है इतना टाइम, कोर्सेस ही कर लो, वो ही काफ़ी बड़ी चीज़ है. सो आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज, एंड सो एक तो चीज़ है कि खुद को डेवलप करना चाहिए, लाइक जस्ट द वे आई डेवलप्ड माई सेल्फ with respect to what I wanted to do. Also, you need to make sure that the company where you want to work, they should see you. They should see that okay, this guy has done something in this field, he has some knowledge. तो इसके लिए मैंने फिर LinkedIn का सहारा लिया. I like whatever courses I did, whatever things I developed, I started putting it on LinkedIn. So from there I got many connections, मेरा network grow हुआ, and that's the very important reason, because even though while doing an interviewer may ask you, this is a very common question, that sell me a pen. But that question is actually if you rephrase it, the question is actually sell me yourself. Sell me you, sell me you. Yeah. So you are selling yourself. Yeah, sell me what you are. Yeah, what you are. तो वही चीज़ है अभी, मतलब अभी तो हालांकि पैंडमिक है, तो ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईलाइट में आ गई है कि हाउ यू आर सेलिंग योर सेल्फ ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स. बट तब तो कैसा था, तब तो कैंपस में तो हो गया था तो अच्छी बात थी. अब ऐसा हो गया कि शिफ्ट हो गया है. अब बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक नाउ
companies are not going to engineering colleges, even if they are going, but not at that scale, which was happening 3 years back at my time. So LinkedIn एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे you should advertise yourself by putting what you are doing, putting the projects, posting regularly. So this will help you increase your connections, and then eventually it will help you to land you a job at a good place. So you started in L&T and got into aerospace, the aerospace domain, but you wanted to work in robotics, and you used LinkedIn and courses to get that job in your dream company. Yeah, Amazing. exactly. Amazing. एंड स्पेशली मैंने एनवीडिया तो पैंडेमिक में ज्वाइन किया था, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट इन दिस न्यू इकोसिस्टम बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. बट कभी भी मुझे इस रिस्पेक्ट में कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार नई कंपनी है, मैं कैसे इसमें खुद को एस्टेब्लिश करूँगा या कैसे वो एनवायरनमेंट में मैं खुद को एडजस्ट करूँगा. इट वाज लाइक आई वाज हैविंग दोज नाइटमेयर्स कि इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छा पैसा दे रही है, सो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग मी टू बी गुड फ्रॉम द फर्स्ट डे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. लाइक एवरी वन वॉज अप्रोचेबल, एवरी वन वॉज गुड, सो दैट्स वॉट आई लाइक्ड अबाउट इट. Amazing. Amazing. So your experience starting to work at your dream company has been a dream itself. Yeah. So like I had like I never thought that I would be joining Nvidia in such situation. Like I always thought that I would be going for masters, फिर मास्टर्स करने के बाद फिर मैं Nvidia में खुद को ये करूँगा कि भैया अब मैंने मास्टर्स कर लिया, अब तो ले लो मुझे. बट मैंने कभी सोचा नहीं था. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैड दैट कनेक्शंस, एंड दैट टू थैंक्स बिकॉज ऑफ LinkedIn that I got those connections, and I was able to present myself pretty well. Because the fact that the HR and the recruitment team was able to see my LinkedIn, and they were knowing that what I am capable of, or what all things I have done. So उनको भी पता रहता है कि हाँ इस बंदे में टैलेंट है, तो वो उस हिसाब से ही फिर तुमको अप्रोच करते हैं. सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड. Amazing. So your LinkedIn is a better resume, a resume which is online and anyone can look at. In a way, it is a resume for HRs to approach you. Right, exactly. Yeah. And it is also a way to showcase the certificates that you have gained, you have earned, and the topics that you know. Yes, right, absolutely. Amazing. Like you can also showcase what all projects you did, how those things work. Like it's just like talking resume. If you upload some media files, videos, clips, now they have added a lot of features. Like you can also introduce yourself in a short video clip. They have added this feature. So अच्छी बात है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, and I feel that everyone should instead of spending time on Facebook and Instagram, like if they spend a little bit of time on making their LinkedIn profile and improving it, I feel that it would be for their own betterment. So your advice to us freshers, us engineering freshers, would be to start building a profile on LinkedIn, a good profile on LinkedIn. Yes. Amazing. So another thing that as a fresher I would like to ask you is the topic that we talked about before recording this, which is the fact that in engineering, when you're doing engineering, you don't have the awareness of what is the market. By market, I mean what are the jobs out there, what are the available jobs. And taking our example as well, you were an electrical engineer who went to work in aerospace domain, and now you've obviously gone to the dream company which is just amazing. But what would you tell us freshers how to get aware about the market out there, how to get aware कि मैंने suppose civil engineering की है, तो civil engineering से मैं कौन से job जा सकता हूँ? Do you know any way of getting more aware? So सबसे आसान तरीका है कि लाइक IIT के वेबसाइट्स है, उसमें M.Tech के प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है.
So there you can find what all open opportunities are there for a civil engineer. Okay. As of now, as a fresher, civil engineer only knows that okay, once I complete my degree, I can only like be into construction things and only into architecture and planning. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. सिविल हो गया, मैकेनिकल तो फिर भी खैर एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सिविल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक फॉर एग्जांपल एमटेक का एक ब्रांच है विच आई गेस डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड you know about the materials which are एक्सो प्लैनेट में होंगे या फिर अपने अर्थ पे जो रिमोट प्लेसेस पे जो भी रिसोर्सेज होंगे उसके स्टडी के लिए आई गेस देर इज़ वन ब्रांच. आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग. तो वहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं. एंड नॉट ओनली इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, लाइक इट इज़ ए multidisciplinary field where engineers from software domain, mechanical domain, then electronics domain are coming together and building something which could help researchers to explore the undiscovered depths and other planets and the resources and the materials which are found over there. So that is a pretty interesting department to look for. So ये सारा इंफॉर्मेशन तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम नेट पे जाके सर्च करोगे. सो एज ए फ्रेशर इट इज़ रियली हार्ड. अब प्रॉब्लम ये रहती है कि गूगल पे जाके सर्च करना है तो कीवर्ड्स भी क्या टाइप करें. यूजुअली बंदा जाके यही टाइप करता है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग. सो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट बेटर ये रहेगा कि तुम अगर किसी फॉर एग्जांपल एक आईआईटी के वेबसाइट पे चले जाओ या किसी भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले जाओ, वेल नोन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, you go there and look into the department in which you want to go. Like for example मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ तो मुझे पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में ही मेरा स्कोप है एज ए फ्रेशर. मुझे पता है कि मैं और कहीं पे तो कुछ कर नहीं सकता, तो एटलीस्ट वो मैं सर्च करूँगा यूनिवर्सिटी के पेज पे कि मेरे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड इस वर्ल्ड में क्या क्या रिसर्च शुरू है, व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज आर देयर. फिर उसमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स तुम्हारे सर के ऊपर से बाउंसर जाए, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहे कि जो तुम्हें इंटरेस्ट करेंगे. फिर एक बार तुमको वो पाथ मिल गया कि हाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, देन गो मोर फर्दर इनटू इट, स्टडी मोर अबाउट इट. तो वो क्या होगा उससे कि तुम्हारा एक तो तुम्हें पता भी पड़ेगा कि तुम्हारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही है वर्ल्ड में, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअली लोग करते नहीं है बिकॉज पता ही नहीं रहता ना कि कैसा अप्रोच करना है. और हमें ऑलरेडी कॉलेज डेज में यही ज़्यादातर बैचलर्स डिग्री में यही फीड किया जाता है कि प्लेसमेंट का ही रहता है. मतलब हायर एजुकेशन और रिसर्च पे भी फोकस रहता है बट इतना नहीं रहता जितना फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स पे ये रहता है प्रेशर. और पीयर प्रेशर भी रहता है साथ में कि भाई दोस्त की तो जॉब लग गई 4 लाख की, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है, मेरे तो 2 बैग्स लटके हुए, कैसा करूँगा क्या करूँगा. तो ये क्वेश्चंस रहते हैं. तो स्टूडेंट्स they are not capable to think that okay we can do this also. So ये चीज़ें रहती है. तो उसके लिए तो यही चीज़ है कि तुम पहले देखो कि तुम्हारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है काम वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड. तो सिविल में तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है. मटेरियल साइंस इज़ द मेन थिंग कि तुम नए नए मटेरियल्स लाके कैसे बिल्डिंग्स बना रहे हो, how fast you are constructing something and how strong those constructions are, how reliable those constructions are. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, आई डोंट नो मच अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, स्टिल आई एम टेलिंग यू दैट ओके कैसे मतलब सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, वेयर दे कैन एक्सप्लोर, गो एंड एक्सप्लोर. सो ये चीज़ है कि ये जब तुम नेट सर्फिंग जो रहती है ये अगर थोड़े पॉजिटिव वे से तुम कीवर्ड्स अगर सर्च करते हो गूगल पे तो ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा. एग्जैक्टली. ये एक्चुअली एक फ्रेशर्स का ही प्रॉब्लम है. मतलब मैं अभी एक फ्रेशर हूँ.
आई एम लिट वॉट यू आर सेइंग, जो जो भी प्रॉब्लम्स बोल रहे हो वो सब मेरे में हो चुके हैं. आई हाँ हैव बिन लाइक प्लेसमेंट है आगे जाके, तो पता नहीं प्लेसमेंट में जाना है कि नहीं. आई मीन दैट इज माई केस कि मुझे मैनेजमेंट में जाना है, बट यू नो द बेसिक, द घोड़े की नाल जो बोलते हैं. हाँ, राइट राइट, हाँ, एग्जैक्टली. तो वो वो फोर्थ प्लेसमेंट ईयर का में है. आके सब लोग प्लेसमेंट की तरफ ही ध्यान देते हैं. इनफैक्ट इफ समवन वांट्स टू डू मास्टर्स आल्सो ना, इट रिक्वायर्स वेरी गट्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स टू एक्चुअली फोकस ऑन दैट. बिकॉज फोर्थ ईयर में क्या रहता है कि अभी तो खैर इस साल काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया था आईआईटीज ने कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी उन्होंने बोला था कि यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू गिव गेट का एग्जामिनेशंस. अच्छा. सो दैट वाज ए प्रिटी गुड आइडिया, बिकॉज तब अगर थर्ड ईयर में क्या इतना टेंशन नहीं रहता प्लेसमेंट का. अब फोर्थ ईयर में क्या रहता है, यू सी दैट योर फ्रेंड्स आर गेटिंग प्लेस्ड इन टू वेरियस कंपनीज. सो इवन इफ यू डोंट वांट टू गेट प्लेस्ड, इवन इफ यू वांट टू परस्यू योर हायर एजुकेशन, स्टिल वो बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चलती रहती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, मेरे सारे दोस्त मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं उधर का उधर ही रह जाऊंगा. तो उससे क्या होता है ना, इधर मन लगता है ना उधर मन लगता है, तो वो प्रॉब्लम होती है. हम्म. तो और ये वो तो ये है. ये चीज़ होती है. तो और इस ये क्यों होता है, क्योंकि हमको पता तो है कि हमको मास्टर्स करना है, बट हमको ये नहीं पता रहता कि हमको मास्टर्स क्यों करना है. एग्जैक्टली. जस्ट बिकॉज काफ़ी लोगों का ऐसा रहता है कि मुझे जॉब नहीं करनी. मुझे जॉब नहीं करने का ऑपोजिट यही होता है कि मास्टर्स कर लो, या जिनके घर पे बिजनेस है वो बिजनेस में कर लो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है इतनी. बट ये चीज़ रहती है कि अगर मुझे जॉब नहीं करना है, प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, तो मास्टर्स कर लो. बट मास्टर्स क्यों करना है, ये बहुत लोगों के इसमें नहीं रहता कि हाँ मुझे ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगती है. पर जब तुम उस इंसान को जाके पूछते हो कि अगर तुम्हें ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, तो क्या तुमने कभी किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देखा कि क्या रिसर्च हो रहा है, उनको कुछ पता नहीं होता एग्जैक्टली. उस चीज़ों के बारे में. दिस इज एक्चुअली अ ह्यूज स्ट्रगल. एंड जितना फ्रेशर्स की गलती बोलो, उतना ही एक चीज़ है कि सिस्टम में ही हमें दिखाया नहीं जाता कि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. राइट राइट राइट, एग्जैक्टली. फ्रेशर्स की गलती है, दैट इज आई मीन नॉट अ गलती, बट आई गेस नेग्लिजेंस बोलो. नेग्लिजेंस है हाँ, थोड़ा सा. मतलब जब घोड़े का ये जो विजन कंस्ट्रेंट ये करते हैं हम, तो ये आजू बाजू जो फ्लैप्स लगाते हैं वो सिस्टम ही लगा के देता हाँ, है exactly. स्टूडेंट्स पर सिस्टम लगा कि के तुमको खाली वो ही चीज़ देखनी है. तुम इधर उधर देखोगे तो तुम जाओगे काम हाँ. से. I guess summing up what you have said up till now about the freshers का problem is, or rather what you should do as a fresher, what I should have done is बाकी के भी जो ब्रांचेस है उनसे भी जाके थोड़ा बात करो कि नॉट जस्ट बात करो कि अगले साल क्या करना है, ये स्पोर्ट्स में क्या करना है, नॉट जस्ट दैट, बट ऑल्सो कि तुम्हारे ब्रांच में जो पढ़ाया जाता है उससे कनेक्टेड मेरे ब्रांच में क्या है, और राइट, एग्जैक्टली. उससे फिर आगे जाके जॉब कौन सी मिल सकती है. राइट, या जॉब कौन सी मिल सकती है, और कुछ. जॉब इज़ नॉट दी ओनली, मतलब अभी तो खैर इंडिया में तो रिसर्च कम्युनिटी इतनी ग्रो नहीं हुई है. बट आई फील कि आगे जाके जैसे अब मोर एंड मोर, मतलब खुद ही अगर कम्युनिटी बनाएंगे लोग, रिसर्च कम्युनिटी, तो फिर वो चीज़ भी बढ़ेगी. फिर लोगों में ये भी ख्याल आएगा कि मैं इस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करूँ. Exactly. इसमें क्या मैं ऐसा ला सकता हूँ कि ये कॉस्ट एफिशिएंट भी रहे और काफ़ी लोगों को हेल्प भी करे सोसाइटी में. क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो उनका पे स्केल इतना नहीं है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे. तो वो सारी चीज़ें जब मतलब जब जैसे 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 ये कम्युनिटी ग्रो होगी, रिसर्च कम्युनिटी, वैसे वैसे ये चीज़ें आएंगी लोगों के ख्याल में. अभी भी आती है काफ़ी लोगों के ख्याल में, बट प्रॉब्लम ये कि रिसोर्सेज नहीं रहते उनके पास वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए. कनेक्शंस नहीं रहते, ये नहीं, मतलब उनके पीछे कोई ऐसा एडवाइज़र या मेंटर नहीं रहता कि मैं अगर मुझे कुछ चीज़ करनी है तो मैं कैसे करूँ. तो ये प्रॉब्लम रहती है लोगों में, फ्रेशर्स में स्पेशली. दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी फेस. हाँ, अनलेस एंड अनटिल यू गेट एक्सपीरियंस्ड इनटू दैट डोमेन. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा बहुत सालों से प्लान था, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि मुझे एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करना है. अब मैं तब जब फ्रेशर रहा होगा तब मुझे
ये आइडिया आया होगा बट मुझे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, या मेरे पास ये नहीं होंगे कि मैं अगर इस आइडिया को मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कैसे करूँ। तो इवेंचुअली जब एक्सपीरियंस तुम गेन करते हो किसी भी इंडस्ट्री में, कनेक्शंस बनाते हो, यू फाइंड वेरी लाइक यू विल सरप्राइजिंगली फाइंड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल हु आल्सो वांट टू डू सेम थिंग। फिर उनके साथ कनेक्ट हो, फिर उनसे और डिस्कस करो उस टॉपिक के बारे में। इवेंचुअली दिस वोंट ऑलवेज लीड यू टू सक्सेसफुल स्टोरी or successful implementation, but at least it will give you confidence that okay, if I want to do something, I have that guys, I have those connections to whom I can just go and ask कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे। जितने ज़्यादा लोग एक ही टॉपिक पे बात करेंगे उतनी और भी नॉलेज शेयर होगी, उतनी नॉलेज राइट बेटर भी होगी। एग्जैक्टली। टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं सोच रहा था कि जब आइडियाज़ होते हैं तो यू think of implementing them in the future, you think of taking up a job that will lead you into that job or into that future, जो idea तुम्हें implement करना है उसकी तरफ लेके जाए, ऐसा कोई जॉब। बट उसका प्रॉब्लम अगेन वही है कि सिस्टम का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, एंड खुद से भी एक प्रॉब्लम भी है। ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, बोलो तो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी होती है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं करनी होती। बट अगर जनरली बात की जाए, जनरली अगर मैं बोलूँ, according to what you have said, according to what I've understood up till now, कि जो आइडिया आते हैं, जो एक थॉट प्रोसेस होती है कि आगे जाके मुझे कुछ करना है, आगे जाके मुझे इंजीनियरिंग जो है, ये जो फील्ड है उसमें जाके बहुत कुछ करना है, तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो कभी कभी इसमें चली जाती है कि यार ये सेमेस्टर निकालना है, यार ये पॉइंटर लाना है, यार इतना एटलीस्ट एक जॉब मिल जाए फिर मैं सोचूंगा अपने आइडिया के बारे में। हाँ तो वही है, मतलब ऐसा रहता है कि वी हैव द गोल्स, लाइक वी हैव द राइट सेट ऑफ गोल्स, बट द प्रॉब्लम इज those goals are constrained by or restrained by what the guys are actually facing। मतलब ख्वाब तो ऐसे होते हैं कि मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना है, रिसर्च करना है, बट फिर इधर आता है कि मेरे तो 2 बैक लगे हुए, मैं कैसे करूँगा। बट द सरप्राइजिंग फैक्ट इज देर आर यूनिवर्सिटीज एंड देर आर गाइज अराउंड द वर्ल्ड who actually had backlogs in their engineering degree, but yet they were successful enough to get into those universities and study and explore what they wanted to। तो ये तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर तुम्हारा बैकलॉग लगा है तुम्हें, या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, या तुम ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ से तुम निकल ही नहीं पा रहे हो, तो ये वहाँ पे होप्स लूज करना इज़ अ बैड आइडिया। उससे अच्छा तुम ये सोच सकते हो कि अगर मैंने ये चीज़ सर्वाइव कर ली तो इसके बाद जो मेरी पर्सनैलिटी रहेगी उसमें कितना ज़्यादा लेवल अप होगा। क्योंकि whenever a person find himself in a bad situation, he always gets that experience and he makes himself strong। And there are many guys who just who just give up and they sit wherever they are। और फिर उनको वही बैड सिचुएशन में कंफर्ट जोन मिल जाता है, फिर वो ही गुट के जीते लोग। वो तो है। It is obviously, as much as we can blame the system, we can blame the education system, we can also say कि यही सिस्टम में हम थोड़ा और अगर एफर्ट्स डाल के अगर हम काम कर ले तो खुद का भी एक जो करियर बनाना ही था वो बन जाएगा। या तो ये जो चीज़ तुमने कही, ब्लेम करना, ब्लेम गेम खेलना, तो इस पे एक काफ़ी अच्छा 2 लाइन का थॉट है जो मेरे टी शर्ट पे मैंने पढ़ा था। इट इज़ वेरी वेरी ऑसम थॉट विच आई वांट टू शेयर। डोंट कंप्लेन अबाउट द थिंग्स विच यू कैन नॉट चेंज। Okay. If you can change those things, then only you should complain about those things. If you have power to change those things, then only you should blame or you should complain. But if you don't have anything to do what you are complaining for, then just stop complaining about it. Stop complaining, get to work. Yeah. That is amazing. It has been such an amazing time talking to you, and it has been so insightful क्योंकि इंजीनियरिंग जो है फील्ड वो बहुत वास्ट है। हाँ, हर एक जो
अलग अलग स्ट्रीम्स है, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सब बहुत अलग अलग है, इतनी सारी चीज़ें है। तो उसमें अगर कोई नहीं हो उसके बारे में बात करने, उसके बारे में अगला जो स्टेप है उसके बारे में बताने, तो बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है। जो तुमने बोला ही कि मेंटोर लगता है, एक कोई आदमी लगता है जो बताए कि ये कर सकता है तू, नहीं तो ये करना चाहिए तुझे। सो या दैट इज, आई गेस you can also talk to your seniors. That is a thing you can do, or you can go to the internet as you said, या and पॉडकास्ट देख upskill. लो ये वाला, काफी कुछ इंसाइट्स Exactly. ये नहीं, बट पॉडकास्ट मेरा तो यही कहना है कि जिस भी फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, उस फील्ड में पहले तो गूगल पे जाके तुम देखो कि उस फील्ड में रिलेटेड क्या चीज़ें हो रही है, और तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तुम्हें काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में। सो मैंने तो जो कोर्सेज किए थे वो कोर्सेरा से फ्री में किए थे, फाइनेंशियल एड अप्लाई करके। तो उसमें भी जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं वो गिटहब पे मिल जाते हैं। खाली तुम्हें सर्च करना है कि फाइनेंशियल एड पे, इट्स जस्ट लाइक यू गाइज आर स्मार्ट इन फाइंडिंग आउट आंसर्स क्वेश्चन के। तो बस भाई गूगल पे डालना है तुमको कि फाइनेंशियल एड के ये 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर बता दो। उस पर थोड़ा सा टिंकरिंग करके यू कैन अप्लाई फॉर सो मेनी कोर्सेज फॉर फ्री, जस्ट फॉर फ्री, एंड यू कैन डू इट. And it will really improve. You can once you learn something, it will motivate you to develop something, and whatever you learn and develop, just put it on LinkedIn. It will help you a lot. Like the more you connect with the guys on LinkedIn, the more they would be approachable towards you, and they will also help you out in finding a job or whatever you want to do. At least they will give you some path or something they will give you. Like अच्छा तुम्हें मैनेजमेंट में काम करना है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड 2-3 पोस्ट तो डालो लिंक्डइन पे कि मैंने ये मार्केट रिसर्च किया है। कोई ना कोई आके तो बोलेगा कि नाइस जॉब, और वो शायद बंदा कोई मार्केटिंग वाला ही निकले। फिर उससे कनेक्ट करो, उससे पूछो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेंटर्स ऐसे ही मिलते हैं। कोई ऐसे बाहर से ऐसे ढूंढ के आके तुमको नहीं अच्छा तुम्हें ये करना है क्या, मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ, ऐसे कोई नहीं आता। तुमको खुद को ही जाके ढूंढना है ये सब। Amazing, amazing. This has been really, really, really great. I could keep talking to you for a very long time. Even I would love to. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट भी होना चाहिए। Exactly. Above the average again. I mean, maybe 2 एपिसोड में स्प्लिट कर दूं, मे बी अगले सीजन में I'll call you back to talk about NVIDIA and your exact job, day-to-day job about your day-to-day job in NVIDIA. But I guess this has been a good enough, long enough episode. I would love to talk you two again for as long as we can. And even I would love to talk. I just love guiding guys. At least I like मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, बट आई रियली फील दैट इफ किसी का भला हो रहा है तो भाई अच्छी बात है, और अभी तो यही चाहिए। ये इंजीनियर्स को एक इंजीनियर से समझ सकता है। अब सभी इंजीनियर का दुख दर्द समझ रहा हूँ इस पेंडेमिक में। एक तो पहले तो 10th और 12th की लोगों को वैसे ही पास कर दिया, तो अलग ही उनके इसमें पहले से गुस्सा चढ़ा हुआ है। आप प्लेसमेंट मिल ले रहा है लोग। टेक्निकली देखा जाए तो इंजीनियर्स भी ऐसे ही पास हो गए। बट अभी 10th और 12th के बाद तो खैर जॉब तो नहीं करनी रहती ना लोगों को। इंजीनियर्स को तो जॉब भी ढूंढनी है। दैट इज द वेरी हेक्टिक एंड the most stressful situation where engineers are facing themselves today. तो उसमें अगर मैं कुछ एक दिए के बत्ती, थोड़ी सी ऐसी चिंगारी भी अगर दिखा दूं कि भैया इधर थोड़ा सा चले जाओ, तो मुझे तो काफी अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये एपिसोड अभी तक ही एक्चुअली बहुत ही हेल्पफुल रहा है, अगर मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो। और मैं तो मैनेजमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर कोई है जो तू जिस साइड जा रहा है, द डोमेन दैट यू आर फ्रॉम, इफ देयर इज समवन हु इज गोइंग टू योर डोमेन, आई एम प्रिटी श्योर दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव टू देम।
दैट वुड बी माई प्लेजर. कोई आके बस बोले कि कल चैतन्य आके मुझे अगर बोल रहा है कि थैंक यू अक्षत, मेरे एक दोस्त को काफ़ी हेल्पफुल लगा है टॉक, तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा. अमेजिंग अमेजिंग. दिस ये पॉडकास्ट का मेन थीम ही यही है, करियर में जो सब कंफ्यूज्ड है. अभी तक मैंने जितने लोगों को इंटरव्यू में लाया है एज अ गेस्ट, I guess 80% of the people were confused for the longest period of their time. तो वो वही है. बट अभी देखते, होप, आई रियली होप दैट लोग ये पॉडकास्ट सुने, और अगर उनको कुछ भी लगा, इफ दे वांट टू टॉक विथ मी ऑल्सो, तो मेरे पास जो भी है मैं उनको बता सकता हूँ हाउ आई डिड, और भी उनको कुछ जानना होगा तो आई इट्स मोस्ट वेलकम. Yeah, you can DM you for on Instagram. या श्योर श्योर, Yeah. यू कैन शेयर. अभी तो मेरा इंस्टा आईडी का इतना अलग सा नाम रखा हुआ है कि मैं स्पेल भी नहीं कर सकता, तो तुम शेयर ही कर देना. टैग कर देना मुझे पॉडकास्ट में, तो I'll लोग tag मुझे. Amazing. This has been an amazing, information-packed, helpful podcast episode. This is the first time I've done video ever, and I'm very glad it was with you. It was on the topic of engineering as well. और अच्छा हुआ नेटवर्क इशू नहीं आया. हाँ, I'm so मतलब मैं ऐसा शॉक्ड हूँ. एक दो बार थोड़ा सा हुआ रहेगा, but this has been amazing. But it's okay. First time. Yeah. It's okay. But it was good that you are bringing this to video. Now you have two platforms. Yeah. You can upload this to YouTube and gain audience over there as well. Yes, so it is yes. a nice thing which you are doing. Yes, thank you, and thank you for doing this. Thank you for being on the podcast, Akshat. It was really, really fun having you. Thank you for having me on this podcast, and I just want to appreciate what you are doing, and continue doing the same thing. Reach out to more people and help them in every possible way you can. Yes, thank you so much for that. Thank you for being on the podcast again. If you are a viewer, if you are listening to this, or if you are watching this on YouTube, thank you so much if you made it till the end of the episode. I don't even know ये कितना लंबा episode रहा है, बहुत लंबा रहा है. And to be honest, we started on 12. Yeah, it's almost an hour. Yeah, it's almost an hour, and अभी भी मुझे लगता है कि यार एनवीडिया के बारे में बात नहीं की, आगे के बारे में बात नहीं की. करेंगे above the average again में करेंगे. I started new podcast just for this, above the average again करके. But yeah, thank you so much, guys. Thank you so much for being on the podcast again. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for watching it till the end of the episode. I'll see you in the next one, probably again with a video podcast. And yeah, that's it for today, guys. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye bye.